on the voter list. Fake and invalid addresses, voters who didn't have addresses or were just fake addresses. Bulk voters in single address, one building, 50 people, 60 people, one bedroom house, but we go there, no 50 people living there. मेरे ख्याल से तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई पार्टी शिकायत करती है या बताती है कि ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए, अच्छी तरह से उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और उसके जो भी परिणाम आए वो पब्लिक को बताना चाहिए. We found that 1,250,000 votes were stolen. And we're going to tell you how. What is the total number in the assembly? Total number of votes? So out of 6,50,000 total votes in the assembly of Mahadevapura, 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. One voter appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses. Voters who didn't have addresses or were just fake addresses. Bulk voters in single address, one building, 50 people, 60 people, one bedroom house, but we go there, no 50 people living there. No record of those people ever having living there, one family living in that house. Invalid photos, photos which you simply cannot see or no photos existing of theirs on the polling list. And then the most interesting, misuse of Form 6. Form 6 is the form that allows new voters to become voters. So generally Form 6 is anyone who's 18 and above but hasn't voted in the last election. So they should be between 18 and 22, 23 years old. And so now we're going to go into the details and we're going to show you how this was done. Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. This is a gentleman called Gurkirat Singh Dang. Here he is. Can you zoom in? Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times. In 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. Second example, same voter, voting in multiple polling booths in Karnataka, in the assembly, and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, no, show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. Just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top 2 there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes, Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka, and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. Duplicate voters was what, 11,000? So there are 11,000 people who are voting 3 times, 4 times, multiple times, right? Okay, now let's go to, okay, here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they register to vote. Okay? मेरे ख्याल से तो ऐसा पॉसिबल नहीं है,
लेकिन उसके बाद भी अगर कोई पार्टी शिकायत करती है या बताती है कि ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए, अच्छी तरह से उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और उसके जो भी परिणाम आए वो पब्लिक को बताना चाहिए, जिससे लोगों का विश्वास चुनाव की प्रक्रिया में बना रहे। चुनाव आयोग के पास लाखों लोग काम करते हैं। अगर एक ही राज्य को लें कर्नाटक, तो वहाँ पे भी करीब 1.5 लाख चुनाव कर्मी मतदाता सूची का काम करते हैं, पोलिंग स्टेशन पे काम करते हैं, सब काम करते हैं। और अपने देश में हर एक व्यक्ति का जो लेवल है वो बराबर नहीं होता। कुछ 3rd डिवीजन पास होते हैं, कुछ 2nd डिवीजन पास होते हैं, कुछ 1st डिवीजन पास होते हैं। सबका लेवल अलग अलग होता है और सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भरपूर कोशिश करते हैं अच्छा काम करने की, लेकिन उसके बाद भी गलती हो जाती है। कुछ दबावों के कारण भी गलती हो जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर्स में दबाव भी पड़ सकते हैं। तो गलतियां तो हो सकती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि गलतियां नहीं हो सकती, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन गलतियों का निकाल भी इलेक्शन कमीशन करता रहता है। डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, फोटो रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और भी चीजें यूज करते हैं जिससे कि वो ठीक से बनी रहे मतदाता सूची। अगर कोई शिकायत अभी भी आई है तो उसको भी इलेक्शन कमीशन को तुरंत देखना चाहिए और उसकी जांच करके जो भी परिणाम आए वो पब्लिक को बताना चाहिए। नहीं, उसको भी चेक किया जा सकता है, क्योंकि अब पूरा देश का ERO नेट है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स नेट, पूरे देश का एक है। तो अगर कोई भी फॉर्म 6 में गलत जानकारी आके रजिस्टर हो गया है तो वो भी उसमें आ जाएगा कि भाई इसका नाम दूसरी जगह है, इसका पहले से ज्यादा है, ये सब आ जाएगा और उसको आप रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई भी गलती आई है तो उस गलती को सुधार सकते हैं। तो अब तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और इलेक्शन कमीशन इन सबको परिमार्जित कर सकती है। तो संभावनाएं तो बहुत रहती हैं। अब जैसे मैं जब इलेक्शन कमीशन में था तो बिहार का इलेक्शन कराया था। आप सोचिए, हम लोगों ने इतनी अच्छी पुलिस व्यवस्था रखी थी कि कोई भी घटना ना हो सके, कहीं भी हिंसा ना हो, नहीं हुई। लेकिन उसके बाद भी जब हमने आंकड़े इकट्ठे किए तो पता चला पोलिंग डे पर 17 मतदान कर्मी मर गए, 17 लोग मर गए। सोचिए, एक छोटे से राज्य में चुनाव कराते हुए कितना तनाव उन पर रहा होगा। तो तनाव रहता है मतलब प्रेशर रहे होंगे और उनने उन प्रेशर को रजिस्ट किया होगा और तनाव के कारण कार्डियक अरेस्ट हो गया, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, जाने क्या क्या हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो ये तो एक रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है कि पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट सब भी जीतने के लिए हर चीज करना चाहते हैं, कानून के दायरे में और थोड़ा बहुत दायरे के बाहर भी ये सब करना चाहते हैं, क्योंकि जीतना है। आप सोचिए ना, स्पोर्ट्स तक में ओलंपिक मेडल जीतने के लिए लोग डोपिंग यूज कर लेते हैं, पकड़े जाते हैं। तो ये तो राज तिलक की बात है, मेडल के अलावा ये राज तिलक है। तो इसमें होगा, ये सब हो सकता है, लेकिन फिर भी अपनी इलेक्शन मशीनरी इतनी अच्छी है कि वो फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन ही डिलीवर करते हैं। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन हमेशा प्रोएक्टिवली सभी स्टेक होल्डर्स की सभी ग्रीवांसेस को रिजॉल्व करने की व्यवस्था करती है और इसमें भी मुझे लगता है यही करना चाहिए कि अगर उनको मीडिया के जरिए ये फैक्ट्स पता लगे हैं कि क्या क्या कहा गया है तो उनकी जांच करके तुरंत करना चाहिए। इनफैक्ट कल मैं टीवी न्यूज देख रहा था तो उसमें ये कि यूपी के CEO ने तुरंत जवाब दिया कि आप जो कह रहे हैं कि 2 वोटर महादेवपुरा में दर्ज हैं वो यूपी के हैं, वो हमारी वोटर लिस्ट में नहीं है। तो इस तरह की चीज कर देने से जनता में विश्वास बनता है और अपने को तुरंत जांच करके रिजल्ट पब्लिक में देना चाहिए।